Every time when I do a program and whenever Chinmay is introducing me, he brings clarity, he brings uniqueness, and there are few features about my training, about myself that I didn't know that he has introduced today very well. Thank you so much, Chinmay, for giving me a different kind of an introduction with uniqueness, features, usages. And this is a nice way of introducing somebody who is doing a technical training. So I learned this today. Thank you. Um, Today, when we are doing this program, I am acknowledging somebody who is there in the participants list and who has given us this idea of doing training on technology. Uh, Whatever I have learned, more because of his training, more because of the interaction with him, and then of course exploring little more on the subject. And he is our national coordinator, gnome coordinator of JCI India, JN. He is Komal Kumar Shah. He's from Navsari, and originally he started this kind of trainings. So if during this conversation, if we stuck up anywhere, we have one more person to respond with us, that is Komal Bhai. I welcome all participants, 100 plus participants. We are right now 103. So 100 plus participants, and along with this participants, HT Patel sir, thank you so much for giving me one more opportunity to serve you all. Today we are going to talk not only about business WhatsApp or WhatsApp, but we are more going to understand that how best we can utilize these applications. It is not just a social media. It is not just a social networking application. It's beyond that. It helps us in so many ways that we really can build our entire career on this. And that's why the entire focus will be on the features, usages, as Chinmay said, and things which we don't know. So much we know, but there are things which we don't know. So straight away going to the topic, there are first few facts. Yes. So it started in the year 2010. It was introduced. Nine, they introduced a company called WhatsApp Inc. 2009. And then from 2010 onwards, it was open for the public to to a entire world to use as an application, mobile application, smartphone application. And business WhatsApp started in the year 2018. And as on date, this is the data of February 2020, 12th February, 2 billion active users. So we can imagine 2 billion, when I'm saying is 2000 million, is 200 crores users they have. And we all know, જ્યારે જ્યારે પણ આપણે WhatsApp ઓપન કરીએ છીએ ને ત્યારે નીચે લખેલું આવે છે from Facebook. So it's now the product of Facebook. And if we look at the database that they have, it's mind blowing, mind boggling. Matlab, they have a database of 200 crore people from WhatsApp only, plus Facebook. And now they have collaborated with Geo with the 10% of equity share worth rupees 43,575 crore. Means look at the way technology is shifting. Look at the way data is becoming important. Look at the way the people are transiting from manufacturing to service to now technology. And this is how we are going to understand that how this one small application can make our life so different. Last 50 days, in last 50 days, 15 billion minutes talking each day on WhatsApp call. People are talking like anything. 15 billion minutes means what? આટલી બધી વાતો આપણે કરી છે. આપણે in the sense across the world. And this is where a new idea can take place. Something different should be created. And that's why every day they are updating. 2 દિવસ પછી WhatsApp પ્લે સ્ટોરમાં જઈને કે આઈફોન એપ સ્ટોરમાં જઈને આપણે ઓપન કરીશું ને તો ત્યાં અપડેટ પૂછશે આપણને and immediately we need to update. So there is an update every day. And that's why we also should learn for our life that if the application is so updated, are we updated?
or we are just using the way we used to use in the year, let's say 2012 13 14 માં જેવી રીતે વાપરતા હતા એવી જ રીતે અત્યારે પણ આપણે વોટ્સઅપને વાપરીએ છીએ. મેં મારા જ વોટ્સઅપના સ્ક્રીનશોટ્સ રાખ્યા છે એન્ડ મારી પાસે બંને છે, નોર્મલ જે આપણું સિમ્પલ પ્રાઇવેટ વોટ્સઅપ હતું, પર્સનલ વોટ્સઅપ અને બિઝનેસ વોટ્સઅપ. એન્ડ વી વિલ સી બોથ. મારી સ્ક્રીન શિફ્ટ થયા કરશે. અત્યારે લેપટોપની સ્ક્રીન ચાલુ છે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનની, અને જેવું મારે પ્રેક્ટિકલ અપ્રોચ લેવાનો આવશે ત્યારે ઓટોમેટિકલી આઈ વિલ શિફ્ટ ટુ ધ મોબાઈલ ફોન અને હું ડાયરેક્ટ શેરિંગ કરીશ એનાથી. સો સેટિંગ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે કોઈ પણ એપ્લિકેશનમાં. એના ફીચર્સ માટે સેટિંગ્સ આર ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર. અને એ સેટિંગ્સનો ડિફરન્સ જોઈએ તો ઇફ યુ કેન સી ઓન ધ સ્ક્રીન, on my left, on the left side of the screen where you can see Jyoti Maru trainer, this is normal WhatsApp. It's not a business WhatsApp. And you have accounts, chat, notification, data storage, and help. Whereas on the right hand side of the screen, you can see a business WhatsApp settings, because akhi game anya જ છે. So you have the first thing, which is business setting. This is the major difference between both. જે લોકો પાસે પણ બિઝનેસ છે, and they have said it very clearly that this is for small business enterprises, that they can use this particular business WhatsApp and promote their business in a different manner. And that's why this particular feature, business setting, is more important here. Then they have account, chats, notification, data, help, which is same. So I will not explain what is there in account, chat, notification, which is common, but definitely we will talk more about things which are not common. So what I'm doing is I'm just sharing my screen. WhatsApp ની screen હું share કરું છું phone માંથી. Now you can see the screen of my phone, and this is the desktop of my phone. And આની અંદર, if you can see on the screen, there are two tabs, two icons, one with the B and one with the phone આપણે જે receiver હોય છે એ. So the one icon with the B is a business WhatsApp, and the one which is normal, a receiver no symbol, is a normal WhatsApp. Let us first get into the normal WhatsApp. અને એના સેટિંગ્સમાં જવા માટે આ ત્રણ ડોટ્સ પર ક્લિક કરવાનું હોય છે, અને એ ત્રણ ક્લિક પર ડોટ કરીએ એટલે ઓપ્શન્સ ઓપન થાય અને એની અંદર સેટિંગ્સ છે. સો વેન વી ગો ટુ ધ સેટિંગ્સ, you can see accounts, chat, notification, અને આ સેટિંગ્સનો તમે મેક્સિમમ ટાઈમ ઉપયોગ કર્યો છે, સૌથી વધારે ઉપયોગ આપણે આ સેટિંગ્સનો કર્યો છે. સો દેર આર નો ડિફરન્ટ થિંગ્સ ઇન વોટ્સએપ. હવે this is the first feature which will come little later also. All right, so when we open a WhatsApp, business WhatsApp, because I have said this, you can see the screen, and at the top you have three buttons, three dots. From that you get into the settings, and when you get into the settings, the most important thing, that business setting, comes in the picture. And this is where the entire difference is. I will take maximum time here and the less time on the rest of the points, because this is very crucial. When we want to use business WhatsApp, this is the most important thing. Most of the time what happens is, when we are traveling, when we go out, when we are not in the office, or we don't have a laptop with us or a computer with us, people call up and say, share some details about your business, send me the brochure, or send me a brief about your company. And we say, you check out our websites. Many times we don't have websites, or our websites are not updated. So this is a handy tool with us. If we have set this profile very well, we can just tell them that open my business my account on WhatsApp, and you can see all my products. So we will see one by one everything. First is business profile. Now the first thing that comes here is photograph. It has to have your company ka logo. It has to have your company ka logo or your professional looking photograph. This is very important. It should not have all types of photograph, but a professional one, or the logo of your company. Then comes, if you can see something like this, on the screen you have my number, and below that it is a business account.
Now, this is very important. Whenever somebody will look at my number in their WhatsApp, they will see this. They will This will create a professional impact. So, whenever we are using business WhatsApp, it will call a business account. The next is very important and it is very interesting. Since it is in association with Facebook, we have a direct sync with our Facebook page. If we have created our formal professional business page, we can link our WhatsApp with our Facebook page, and whatever changes that we make here, it will be reflected there. And what will be those changes? The changes with respect to my profile means, um, if you see, it talks about who I am. So, a corporate trainer, certified NLP practitioner, management consultant, and a certified PPA practitioner. Now, if you are a business person or you are providing some services, what you can add here is about your industry, about your products, or about your company. Little bit about your company. Here you can write. For the students, I would appreciate if you start using your WhatsApp as a business WhatsApp. Your niche, your competencies, your skills can be reflected here. And these days, students are not just students, they have something extra with them. So you can surely share something about yourself here. Then we have, of course, our address. So many times we have received a call and said कि एड्रेस मोकलिए, आपने आपका एड्रेस भेज दीजिए ना, मुझे आपके वहाँ पे कुछ भेजना है या तो आना है. And we used to type the entire address. Might as well, it is there stored, the entire address of my office along with the Google map, and I just have to tell them that check my WhatsApp profile and they will get it. Then comes, um, what are your products? So I am a motivational speaker, management services, and personal coach. So this is a business category here. Now this helps in a very different manner, because uh, Facebook and WhatsApp, they create database, and when we have a specific category like this, it is easy for them to categorize us. And that's why those who are doctors, they can write doctors. Under doctors, they can have a specifications as per their specialization. Or you are an advocate, if you are a manufacturer, if you are a trader, you can write down the industry. Like for example, if you are from a diamond industry, you can write down. Now if you are a student, what you can write here is a student of so and so class, so and so stream, and your specifications. Because I have seen so many students who are graphic designers, then you can write down your design also. If you are a singer, you can write a singer. So there are a lot many categories available, you just have to pick up those categories from that. After that, you see Tuesday, and there is a time written 9 a.m. to 5 p.m. Now, this talks about the working hours of my company. Now, here students can ignore this because it's not your working hours, but still you can write down. So, people can call you between these hours. So, you can avoid your college timings, your class timings, and your free timings you can add if you're doing some freelancing work. Then you have your professional email ID and your website address. And then दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यहाँ तक तो ठीक था, ये तो कहीं ना कहीं हम स्टोर करके भी रखते हैं हमारे फोन में एंड वी कैन शेयर विद देम. बट दिस इज द बेस्ट फीचर दैट the WhatsApp business has, and that is catalog. Now, what is catalog? So that is nothing but our leaflet, our brochures that we carry. Physical copy of the brochures generally we carry when we go for a business meeting. This catalog is more or less the same. If people, they don't want to go to your website and search what you are selling and the products and the services, from the WhatsApp itself, it's so handy that they can check out all your products in detail the way you have put it. I'll just show you how it is working. So if I click on the catalog, you can see the categories. Now in catalog, what I have is, of course, my company ka naam, so that is my name, then corporate trainer and all information, and then my first product, training on making LinkedIn profile effective. Now things which I have already done, I can share here. So somebody wants this kind of a training program once again, they can connect with me.
Today I'm doing this WhatsApp business application training, so it is also one of the products. So technical items that I have mentioned. We have NLP program in the month of June, so I have mentioned that we do NLP trainings also. We also are into service, recruitment services and training and development. So every product that I am dealing with have mentioned here, and in the same manner whatever products that you are dealing with, you can write down here. And when you want to write down, if you click on that particular product, you can see the entire description, you can see everything about that. You can see the photograph, you can see the details about the same, and whatever that you want to mention in that, you can mention. Like for example, if I go to the training and development, all that I have to share here is this photograph. So my training programs photograph is there, so I have shared all the photographs. So many times we may not have more things to display, so we can just deal with the photographs. For example, recruitment, so we have these openings and I have shared the openings here, so people can see this opening and then they can share their resumes. So whatever feature of your service or product are there, you can describe here. This is a handy catalog. Yes, we need a number for WhatsApp. I'll just come to that part also. So this is catalog. जितना भी ब्रीफ हम इसको बनाएंगे, जितना डिटेल में इसको हम बनाएंगे, उतना ज्यादा हम लोगों तक पहुंच पाएंगे. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द एंटायर फोकस ऑफ बिजनेस व्हाट्सएप इज ऑन दिस. The rest of the features are important, but this is the most important feature, and that's why take enough time to create your catalog. Add all your skills, competencies for students. Add all your products for people who are dealing with the product. आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हो, सर्विस के डिटेल्स भी डाल सकते हो. So if somebody is an advocate, they can have multiple portfolio in their practice, and they can write down all the portfolios. So this is the best thing that one should do. So these are about the catalog. And of course, generally we used to write the status line when we open our WhatsApp, and that is about behind every successful woman. That's it. And how do I edit? एक बार बना लिया, बट हमें एडिट करते रहना है. नाउ देयर इज अ स्मॉल थिंग दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. ये ऊपर एक पेन जैसा साइन दिख रहा है. दिस साइन इज अ साइन ऑफ एडिट. नाउ बिकॉज माई WhatsApp account is linked with my Facebook, they will ask me, because I am editing, the synchronization will stop, and if I have to change something, I have to stop it, and then I will change it, and then I have to make it once again is in the sync. So if I start with continue, it will allow me to edit whatever I want to edit. So now I want to change the time, because the time of Tuesday is wrong. The rest is 6, but on Tuesday it is 5. So I just want to change that to 6 and okay. And then it is done. I have to save it. Whatever changes that I have made has to be saved, and saved is on the top of the screen near the name, and you have to press sync. And if you see now, your account is synchronized with Facebook वाला line वहां से निकल गया है. It's not there because right now it is not synced now because I have made changes. Now once again I have to sync it with my Facebook account. So this was our settings, business settings का first part, business portfolio और business profile. कैटलॉग सेपरेटली भी है, जो हमने वहां पे देखा वही कैटलॉग, यू कैन सी इट फ्रॉम द सेम. सो बिजनेस प्रोफाइल से भी आप कैटलॉग में जा सकते हो, और स्पेसिफिकली कैटलॉग में भी आप जाके अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, आपके सर्विसेज ऐड कर सकते हो, आपके स्किल्स कॉम्पिटेंसीज ऐड कर सकते हो. देन द थर्ड कम्स स्टैटिस्टिक्स. नाउ दिस इज जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन. इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अगर नहीं भी पता है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम्स, बट इट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. दिस टॉक्स अबाउट अभी तक आपको कितने मैसेज रिसीव हुए हैं, आपने कितने मैसेजेस भेजे हैं, कितने मैसेज को आपने रीड किया है, all the information. One second, it will just come. It will calculate and come. That's why it is taking little time. Yeah.
So till now, from the date of installation, I have sent about 1,22,512 messages I have sent. How many of them are delivered? So 86,000 messages, 86,527 messages are delivered. Um, कितने message out of 86,000 has been read? So let's say 79,000. So the effectiveness of my sent message is 79,000 from 1,22,000. This is what we can understand when we are using it for marketing purpose, when we are using it for the business purpose. This is very important. And what I have received, 2,26,310 messages till now. And if I get one more message, this will be updated and you can see the difference. So this is for information we have. Then we have a short link. This short link is to put it on the business our business card, visiting card, or in the signature of email ID. Many times people ask कि आपका WhatsApp number क्या है, and then we have to tell them a number. Might as well we send this link to them and they directly get connected with our business. So this helps in this way. We can copy and we can forward. If you want to copy, you can copy from here. The link is copied and you can forward this link, or you can directly share it from here. So you can directly share it to anywhere. आपको अगर किसी का नंबर स्टोर नहीं करना है and you want people to join directly from their side, you can use this. uh, then comes linked accounts. Now क्योंकि वहां पे फेसबुक मेरा synchronization में से बाहर निकल गया था, because I added something, and here you can see that Facebook page Jyoti Maru is linked, and the moment I will turn it on, enable करूंगी, तो again it will be in a sync. So all that I have edited will be synced and people will see the same thing over there. So this is how it synchronizes. Somebody writing on my WhatsApp tab, सॉरी, फेसबुक पे एक टैब आता है व्हाट्सएप मैसेज का, वहां से डायरेक्टली दे कैन सेंड एन ए मैसेज टू मी बिकॉज इट इज सिंक्ड विद माय व्हाट्सएप अकाउंट. So this is very important in the business. When we have inquiries on our Facebook page, our Facebook business page, they can directly connect with us through WhatsApp. They can also call us, they can write to us, but WhatsApp is very handy, and that's why business WhatsApp has this particular feature, and this is very nice feature that they have, connecting with the Facebook page. Now these three tools, मैसेजिंग टूल्स जो हैं, these are very important. Many times what happens is, in communication, in email etiquettes, we say that responding to any queries is very important, and it is a part of an etiquette, and that's why away message, greeting message, and quick replies help us. So whenever you are not very close to your phone, you are away from your phone, or you are not in a position to respond immediately, you can draft a simple message, and that message should be kept here. And if this feature is enabled, आपको यहाँ से ऊपर से enable करना पड़ेगा. If you see send away message, उसको disable कर सकते हैं, means it will not go. And if we enable this, then whatever message that I have typed will go to the person who will send me the message. Now we can write, we can customize this message when you are away from your phone. So this is an automatic reply. I have written a brief about myself and my services. So when somebody will send me a message and I am not in a position to respond to that person, this message will come. Somebody from the participant, they can try if they want to try. My number is also already mentioned there. I also can schedule this. Always send, custom schedule, or outside of a business hours. So when I'm not in my business hours, which is away from office, at that point of time only it will share. So many times what happens is, जब हम ऑफिस का फोन यूज करते हैं तो वी डोंट टेक इट टू होम, and at that point of time this away message will help us. So people can customize this message and they can draft accordingly.
to whom to send. So you can once again have a choice. So you can choose to whom to send this away message, which are the recipients. So you can send it to anyone and everyone who will send a message, or those people who are not in your address books. Means those who are in your address book. So जितने लोग आपके already address book में हैं, आप उनको जानते हो, उनको आपको ये मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है. एंड दैट्स व्हाई द सेकंड ऑप्शन इज देयर, एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक्स, everyone except. If I use this third, it will give me an option कि मेरे फ्रेंड लिस्ट में या मेरे जो एड्रेस बुक है उसमें जितने भी लोग हैं, उस लोगों में से कितने लोगों को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए. सो मे बी माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, दे डोंट नीड दिस काइंड ऑफ ए मैसेज, एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी, they should not be sent this message, or only two, a few should get it. Now you'll be in a position to see my screen, and you can see my Facebook account, and there is a page with the name Jyoti Maru, and here we have this WhatsApp button. When you go to settings on your page, not on the account, on the page, you will see here Instagram and WhatsApp both. And in WhatsApp, when you go to WhatsApp, you can see this. ये क्योंकि already connected है इसलिए दिखा रहा है. I'll just show you with something, some other page. And यहाँ पे हमें ये WhatsApp दिखेगा. Settings में on the left hand side corner WhatsApp दिखेगा. एंड आपको यहाँ पे आपका नंबर डालना है, एंड आपको एक व्हाट्सएप पे कोड आएगा. जैसे वो कोड आएगा, यू जस्ट हैव टू राइट दैट कोड इन दिस बॉक्स एंड इट विल बी सिंक. So this is how you sync your WhatsApp account with your Facebook page. So this, we were talking about away message. So when you are not with your phone, you are away from your phone, which is off the business hours, तब आप ये मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हो. और यहाँ पे मैसेज कैसे लिखना है? सो ये जो साइन है आपको दिख रहा है, दिस पेन का साइन, वहां से आपको एडिट करना है, एंड यू कैन एडिट योर एंटायर मैसेज. यू कैन राइट द वे यू वांट टू राइट. आप ओके करेंगे एडिट करने के बाद, और उसके ऊपर आपको सेव करना है. जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये मैसेज सेव हो जाएगा, एंड आपने जो सिलेक्शन किया है वो सिलेक्शन के बेस पे दिस मैसेज विल गो टू पीपल. नाउ समटाइम्स इट हैपेंस, एक चीज आपको नीचे दिखेगी, सॉरी, greeting message. Now many times new people send us a message and we have to respond to them, but immediately we may not be in a position to respond to them. तो काफी टाइम ये होता है कि व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं और हमारा मैसेज नीचे चला जाता है, किसी का भी मैसेज बहुत नीचे चला जाता है, एंड वी मे फॉरगेट दिस. सो ग्रीटिंग मैसेजेस आर only sent when the phone is in active mode. ये सारे मैसेजेस जब आपका फोन इंटरनेट कनेक्शन में है तब भी जाते हैं. एंड ये मैसेज अगर 14 दिन तक आपने किसी के साथ बात नहीं की है तो उनको रिपीट में जाएगा. So after 14 days, once again you will greet with that person if that person sends you one message. तो ये या तो नए लोगों को जाएगा, या तो 15 दिन 14 दिन के बाद पहली बार अगर कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है एंड ये 14 दिन में आपने बात नहीं की है, तब वो मैसेज जाएगा. हियर ऑल्सो यू कैन हैव whatever you want to write. आप ये ग्रीटिंग मैसेज है तो आप कैसे हो कैसे नहीं वो भी लिख सकते हैं. You can write a little brief about your company, that is also possible. So you can write down whatever you want to write in this. Again, here we have this option किसको भेजना है, so you can choose that way. And last important feature is quick replies. Now this quick replies are shortcut keys. जैसे हमें कंट्रोल C एंड कंट्रोल V का यूज हमें पता है, कंट्रोल V का यूज पता है, तो हम पूरा प्रोसेस नहीं करते हैं कि हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, वहां पे प्रिंट क्लिक करेंगे और फिर प्रिंट का मेन्यू ओपन होगा. वैसा नहीं करना है. सो मेनी टाइम्स व्हाइल ड्राइविंग अगर हमें कुछ मैसेज भेजना है, या तो ड्राइव करते वक्त हमारा कोई रिस्पॉन्स हमें भेजना है, या तो हमें कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स एवरी टाइम भेजना होता है. जब भी किसकी क्वेरी आती है तो हमें भेजना है, तो हम ये क्विक रिप्लाईज टाइप करके रख सकते हैं. और इसका बेनिफिट ये है
कि जब ये क्विक रिप्लाईज हम लिखते हैं तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर टाइप करेंगे आप, जैसे TH थैंक यू है तो उसमें THAN लिखा है, उसको जैसे ही हम टाइप करेंगे तो पूरा मैसेज आपको शो होगा। आई जस्ट शो यू कि किस तरह से ये क्विक रिप्लाईज वर्क करता है। सो राइट नाउ आई एम इन ए चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में जाने के बाद मैंने स्लैश प्रेस किया तो मुझे जितने भी क्विक रिप्लाईज मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखे हैं वो सारे ही दिखेंगे, एंड आई कैन चूज वन। उसमें सिर्फ टैप करना है उसके ऊपर एंड द एंटायर मैसेज इज देयर इन द बॉक्स एंड आई कैन इमीडिएटली सेंड इट। या तो किसी ने मुझे मैप भेजा बोलने को, किसी ने बोला कि आप मुझे आपका मैप भेज दीजिए, गूगल मैप, तो मेरे एड्रेस का मैप मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर करके रखा है। सो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ क्विक रिप्लाईज में हैश जो स्लैश था उसको टाइप किया एंड इट इज देयर, सो आई हैव सेंट इट। So this becomes faster. You don't have to type the entire address and very quickly you can send that map from here. So this is the feature of business. ये बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं थे, वो सारे ही फीचर यहाँ पे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम जिसकी बात करने वाले हैं वो नॉर्मल फीचर्स की बात करेंगे। So till now what we have discussed is, now this is another very important thing, और ये बिजनेस अकाउंट एंड नॉर्मल व्हाट्सएप में कॉमन है। सो डोंट वरी अबाउट कि आपके पास अगर नॉर्मल अकाउंट है तो क्या करेंगे। सो सबसे पहले वंस अगेन आई एम शेयरिंग अब मेरे व्हाट्सएप का स्क्रीन, और उसके सेटिंग्स में जाएंगे एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेसी। सो प्रिवेसी कहाँ से आएगा, हमारे अकाउंट्स में प्रिवेसी। एंड प्रिवेसी ये शायद सबको ही पता है, ये हम बहुत सारी बार यूज भी करते हैं। लास्ट सीन कितने कितने किसको दिखाना है, सबको दिखाना है, सिर्फ कांटेक्ट को दिखाना है या किसी को नहीं दिखाना है, प्रोफाइल फोटो किसको दिखाना है। अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, इफ इट इज फॉर द प्रोफेशन, इट इज एडवाइजेबल कि वो सबको दिखे। आपका पर्सनल अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो पर्सनल रीजन के लिए, तो जरूरी है कि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आपका स्टेटस कौन देखेगा, जो भी स्टेटस आप रख रहे हो तो वो स्टेटस का भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि कौन देख सकता है। नाउ दीज फीचर्स आर सेम इन बोथ। Do we want a read receipt to be sent? Now we know that read receipt is pink, blue color का टिक हो जाना। आपको भेजना है कि नहीं भेजना है, you can choose it from here. And same is the case with group, कि आपको लोग ग्रुप में ऐड कर सकते हैं कि आपके परमिशन की जरूरत है। सो यू कैन चूज दैट हाउ पीपल शुड ऐड यू इन द ग्रुप। तो आप यहाँ पे सबके लिए ओपन कर सकते हैं, सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट के लिए, या तो कोई स्पेसिफिक पर्सन। मैंने लाइव लोकेशन ऑफ रखा है, बट इफ यू वांट यू कैन टर्न इट ऑन, बट एडवाइजेबल इज कि हम लाइव लोकेशन कंपैरेटिवली बंद रखें, जरूरत ना हो तो। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा नंबर काफी जगह पे स्प्रेड हुआ होता है तो लोग कभी फालतू के मैसेज भेजते हैं। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वंस यू गेट टू नो आई हैव ब्लॉक्ड दीज मेनी पीपल, so they started chatting differently and immediately I blocked them. So I can block people and you know that. And this fingerprint lock जो मैंने आपको तब दिखाया था, this is once again a security के लिए है। आपको फिंगरप्रिंट डिसेबल्ड है अभी, आपको अंदर जाना है, उसको एनेबल करना है। जैसे ही आप एनेबल करेंगे इट विल आस्क फॉर द फिंगरप्रिंट एंड यू कैन चूज इट द वे यू वांट इट। सो इमीडिएटली कब आपका स्क्रीन लॉक हो जाए, तो इमीडिएटली आफ्टर 1 मिनट और 30 मिनट्स। सो प्रेफरेबली इट इज 30 मिनट। एंड शो कंटेंट इन द नोटिफिकेशन, वो हम एनेबल कर सकते हैं अगर हमें करना है तो, ताकि वो पॉपअप में हमें दिखे। So this is about privacy. It is same in WhatsApp business also. बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है इनफैक्ट। Then we go to security. ये एक एडवांस फीचर है जो व्हाट्सएप ने आई थिंक पिछले 2-3 साल से इनिशिएट किया हुआ है, एंड दैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन।
मीन्स कि हम जो भी मैसेज भेजते हैं वो एनक्रिप्ट हो जाता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड मैसेज पूरा प्रोसेस होता है, एंड जब रिसीवर ये पेज सॉरी ये मैसेज रिसीव करता है तो वो डिक्रिप्ट होके हमने जो ओरिजिनल मैसेज भेजा है उसके फॉर्म में आता है. वी डोंट नो दिस प्रोसेस, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप सब अपने व्हाट्सएप में इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को ऑन कर दे, जो आपको दिख रहा है शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, उसको एनेबल कर दीजिए. जैसे यहाँ पे आप डिसेबल ये डिसेबल है, इसको आपको एनेबल करना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस, ताकि आपका कोई भी मैसेज कहीं पे भी लीक ना हो, कहीं पे जाए नहीं. ये डेटा बहुत सिक्योर्ड हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन एनक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने देखा होगा काफी लोग के चैट बॉक्स में आपको दिखेगा कि सिक्योरिटी नंबर चेंज किया हुआ है, सिक्योरिटी का एक मैसेज आपको दिखेगा पॉपअप के तौर पे चैट में, इज बिकॉज ऑफ दिस. टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑल्सो वन वे ऑफ सिक्योरिंग इट. यहाँ पे मैंने डिसेबल इसलिए रखा है ताकि मैं बता सकूं कि इसका रीजन क्या है. ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस इट इज ऑन. सो जैसे ही इसको डिसेबल करेंगे तो इजीली कोई भी ये पर्टिकुलर व्हाट्सएप में एंटर हो सकता है. बट एनेबल करने के बाद वहां पे मुझे एक पिन देना है. जैसे ही मैंने ये पिन दे दिया, मुझे मेल डालना है, एक ईमेल आईडी कंफर्मेशन के लिए. और जैसे ही मैंने इसको एनक्रिप्ट कर दिया, टू वे वेरिफिकेशन सेट कर दिया, डन कर दिया, अब ये होगा माय फेसबुक माय व्हाट्सएप विल आस्क मी दिस पिन टू एंटर. सो without this passcode nobody can enter into my WhatsApp. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वैसे ही मैंने फिंगरप्रिंट लॉक तो दिया हुआ है, तो एप्लीकेशन में भी कोई एंटर नहीं हो सकता है. सो टू वे वेरिफिकेशन, टू स्टेप वेरिफिकेशन जो जनरली गूगल में भी है कि हमारे फोन में एक कोड आता है या तो हमारे फोन पे हमें टैप करना होता है, इट इज द सेम दैट टू स्टेप वेरिफिकेशन इज नेसेसरी. इफ यू वांट टू चेंज नंबर, आपने नंबर चेंज किया है, यू कैन आराम से चेंज योर नंबर फ्रॉम हियर. all your groups, all your contact details, all your chat will remain as it is, only the number will change. नाउ रिक्वेस्ट इन्फो रिपोर्ट, ये आपके व्हाट्सएप के अकाउंट का इंफॉर्मेशन है जो व्हाट्सएप के पास है. तो कुछ फ्रीक्वेंसी पे ये सारे रिपोर्ट्स मांगना जरूरी होता है. एंड व्हाट ऑल दैट यू हैव टू डू इज, आपको क्लिक करना है एक बार, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 3 दिन में आपको वो रिपोर्ट मिलेगी. उसमें आपके सारे ही इंफॉर्मेशन होगी. यहाँ पे चैट नहीं होगी, बट कितने लोगों ने आपका अकाउंट चेक किया है, कितने लोगों के मैसेजेस आए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको थ्रू ईमेल मिलेगी, और यहाँ पे भी नीचे शेयर होगी. सो आप यहाँ पे नीचे डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मांगेगा, तो आप वहां पे वो रिपोर्ट को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ योर व्हाट्सएप. And then of course you don't want to continue with your WhatsApp account, you can delete it, but generally we are not getting into that because nobody is going to do that. uh, Chat, most of the time everybody knows. एक चीज जो अभी लेटेस्ट अपडेट है, एंड दैट इज डार्क मोड. जनरली हम लाइट मोड पे काम करते थे, हमारा व्हाट्सएप ऐसा हुआ करता था, अभी तक यही चल रहा था. बट देन दे हैव इंट्रोड्यूस डार्क मोड फॉर नंबर ऑफ रीजंस. 2-3 रीजन है जिसकी वजह से डार्क मोड यूज किया है. नंबर 1, इट रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ बैटरी. नंबर 2, रीडेबिलिटी बहुत क्लियर हो जाती है. जब व्हाइट में रीड करना होता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, एंड जब हम डार्क मोड में चूज करते हैं तो रीडेबिलिटी कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से ज्यादा अच्छी होती है. सो जिसको पसंद है वो अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकता है. These are basic settings. Enter is send. जब आप enter प्रेस करते हो कीबोर्ड का तो वो सेंड हो जाता है. जनरली ये डिसेबल रखना है क्योंकि हमें आदत होती है टाइप करते वक्त एंटर करने की नेक्स्ट लाइन में जाते वक्त, एंड दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम इसे डिसेबल रखें. मीडिया विजिबिलिटी इज समथिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और हमें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी टाइम ये होता है कि बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप में जो मीडिया आता है, फोटोग्राफ्स हो गए, वीडियो हो गए, ऑडियो हो गए, या कोई जीआईएफ हो गया, तो उसकी वजह से हमारा फोन भर जाता है.
उसमें स्पेस नहीं रहती है। एंड दैट्स व्हाई ये मीडिया विजिबिलिटी को ऑफ कर देना है। तो ये होगा कि ये आपके जो भी मीडिया है वो डाउनलोड तो होंगे, बट आपके फोन के गैलरी में वो शो नहीं करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जगह नहीं लेगा। सिर्फ और सिर्फ वो आपके व्हाट्सएप के डेटा में ही रहेगा, आपके फोन की स्पेस को वो हैम्पर नहीं करेगा। एंड दैट्स व्हाई इसको ऑफ करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका फोन ना भरे, राइट। एंड यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जनरली एप्लीकेशन में हमारे पास इतने लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, वी ऑलवेज प्रेफर इंग्लिश, बट कुछ होते हैं जिनको हिंदी की जरूरत होती है या गुजराती की जरूरत होती है, तो दे कैन शिफ्ट एंड वी कैन हेल्प आवर पेरेंट्स और आवर ग्रैंड पेरेंट्स इफ दे वांट ए डिफरेंट लैंग्वेज, हम उन्हें हेल्प कर सकें। दिस इज इम्पोर्टेंट कि बैकअप कैसे लेना है उसके बारे में, जो बहुत सारे लोगों को जब शिफ्ट करना था, इफ यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम ए नॉर्मल व्हाट्सएप टू बिजनेस व्हाट्सएप, तो यहाँ पे चैट का एक बैकअप अवेलेबल है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस ही यूज कर रहे हो या तो आपको चेंज नहीं करना है, फिर भी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस बैकअप, ये बैकअप में जाना है। और जैसे ही आप इस बैकअप में जाओगे और यहाँ बैकअप पे प्रेस करोगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक ए बैकअप ऑफ माय एंटायर व्हाट्सएप के चैट का। मेरा अकाउंट ऑलरेडी एक लिंक है, और वो लिंक अकाउंट पे ये बैकअप ट्रांसफर हो जाएगा। आई विल शो इट, माय बिजनेस व्हाट्सएप में ये रेगुलरली करती हूँ, तो आई विल शो इट देयर। सो यहाँ पे मैंने जो लास्ट बैकअप लिया था वो आज 3:30 बजे लिया है, एंड द बैकअप इज ऑफ 7.6 GB, and the entire backup was taken on the Google Drive of the email ID which is written. So backup press करना है, automatically it will start taking the backup, पूरा बैकअप लेगा और उसको अपलोड करेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वन थिंग विच वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल इज एवरी डे इट शुड बी टेकन, एवरी डे योर बैकअप शुड बी टेकन। तो कभी कभी ये होता है कि हमारा फोन खो गया, या हमारे व्हाट्सएप में फोन क्रैश हो गया, हमारा व्हाट्सएप कहीं डिलीट हो गया, अनइंस्टॉल हो गया, तो हमारा बैकअप रेडी है। और जैसे ही हम नए फोन में या नए डिवाइस में हमारा बैकअप लिंक व्हाट्सएप एनेबल करेंगे, तो ये पूरा बैकअप आपको मिलेगा वहां पे। एंड दिस बैकअप ऑल्सो इंक्लूड्स वीडियो। सो आपकी इंपॉर्टेंट कोई फाइल यहाँ पे आप आई है, तो वो वीडियो के साथ अगर आपने उसका बैकअप लिया है, तो वो भी आपका स्टोर हो जाएगा। इट विल टेक अनदर 1 मिनट्स टाइम, क्योंकि ये बैकअप प्रोसेस चालू है, तो वी कैन नॉट मूव फर्दर, या तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, बट उसको होने देना है, नो प्रॉब्लम्स। जैसे ही मैं दूसरे डिवाइस में लॉग इन करूं मेरे यही नंबर से, तो वहां से ये बैकअप रिट्राइव करेगा, और वहां पे ये ईमेल आईडी से मेरा लॉगिन होना जरूरी है वो डिवाइस पे। अगर सेम डिवाइस, अनदर डिवाइस विथ सेम ईमेल आईडी लॉग्ड इन, वो पूरा बैकअप रिस्टोर करेगा, और रिस्टोर करने के बाद ये हो सकता है। आई एम जस्ट कैंसलिंग इट बिकॉज राइट नाउ आई डोंट नीड अ बैकअप, बिकॉज राइट नाउ इट इज प्रिपेयरिंग इट फॉर गूगल ड्राइव। इफ यू कैन सी ऑन द screen, it has already started, just let it get over. आपको नीचे ड्राइव के सेटिंग में दिखेगा बैकअप टू गूगल ड्राइव डेली लिखा हुआ है, एंड जनरली ये डेली का टाइम होता है, रात को 1-2 बजे के बाद ये बैकअप लेना शुरू करता है, एंड इट टेक्स अबाउट 30 मिनट्स टाइम, अगर आपका नेट का स्पीड स्लो है तो, एंड वो आपके गूगल ड्राइव के ऊपर पूरा बैकअप ले लेगा। So now it is uploading everything on Google Drive. Now I can go back. आपका गूगल अकाउंट लिंक होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, एंड यू कैन चूज बैकअप कब लेना है, वाईफाई पे या अपने मोबाइल डेटा पे, सो यू कैन चूज। एंड मैंने यहाँ पे मेरा वीडियो भी, जो वीडियोस हैं उनको भी इंक्लूड करने को बोला है। तो इन 7.6 GB, 4 GB इज अप्रोक्सीमेटली वीडियो, सो इफ यू वांट यू कैन चूज दिस वे। चैट हिस्ट्री, हमें यहाँ से एक्सपोर्ट चैट का ऑप्शन मिलता है। जो किसी का भी चैट मुझे एक्सपोर्ट करना है, आई कैन चूज दैट पर्सन
चैट, मुझे मीडिया इंक्लूड नहीं करना है, विदाउट मीडिया इनिशियल कर दिया मैंने प्रोसेस, वो चैट को कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहा है। कैसे एक्सपोर्ट करेगा वो मुझे यहाँ पे पूछ रहा है। सो आई हैव दीज मेनी ऑप्शंस एंड मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए मेरे ही दूसरे व्हाट्सएप पे। सो कांट शेयर 30 मीडिया, ठीक है कोई बात नहीं, बट यहाँ से हम चैट को ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरा चैट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये चैट सेव करके रखना जरूरी होता है क्योंकि बिजनेस की काफी सारी इंटरेक्शन हम चैट के ऊपर करते हैं, तो वो चैट को सेव करके रखना जरूरी होता है। द सेम ऑप्शन इज पॉसिबल फ्रॉम ए स्पेसिफिक चैट ऑल्सो, हम वो पर्टिकुलर चैट में जाके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम आर्किव कर सकते हैं, आर्किव मीन्स के संभाल के रख सकते हैं, वो सेफ जोन में है, कभी गलती से डिलीट ना हो जाए उसके लिए। क्लियर चैट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां से नहीं करना है कभी भी, बट आप जो कोई भी मैसेज में जाते हो वो मैसेज में जाके वो पर्टिकुलर चैट को क्लियर करते रहना है। जनरली जो नॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उसको हम अगर रिड्यूस कर देंगे तो टोटल साइज आपका कम हो जाएगा और बैकअप इतना फास्ट हो जाएगा। इस वजह से अगर आप पॉसिबल है तो चैट को क्लियर करते रहिए। देन कम्स नोटिफिकेशन, इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट हमें नोटिफिकेशन जिस तरह से आते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे रख सकते हैं। हम ग्रुप के नोटिफिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं एंड नॉर्मल जो सिंगल मैसेज है उसके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। आपका डेटा किस तरह से यूज होता है उसकी भी इंफॉर्मेशन ये देता है। दिस इज अगेन फॉर इंफॉर्मेशन। सो नेटवर्क यूसेज कितना हुआ है, तो मैसेजेस भेजने में 5.4 GB एंड रिसीव करने में 1 GB, तो इतना टाइम इतना डेटा मेरा यूज हुआ है। इस तरह से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। दिस इज ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम अगर लो डेटा कर देंगे तो कॉल में ये कंपैरेटिवली कम डेटा यूज करेगा। तो मैंने यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया, अब जब मैं कॉल करूंगी व्हाट्सएप कॉल तो वो डेटा कंपैरेटिवली कम यूज करेगा। अगर डेटा की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। एंड देन यू हैव हेल्प का ऑप्शन, आप यहाँ पे अपने क्वेरीज व्हाट्सएप को लिख सकते हो। आपके जो भी क्वेरीज है, आप अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट भेजना है यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट भी आप उसमें अटैच कर सकते हो, एंड जैसे ही आप क्वेरी लिखोगे तो वो आपको यहाँ पे उसके एफएक्यूज में लेके जाएगा। अगर उसके एफएक्यूज में से आंसर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू सेंडिंग दैट मेल from here and they will respond to you. So this was a part of settings. Now we get into another part. ये जो 3 डॉट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉट्स हैं। ये 3 डॉट्स में नया ग्रुप कैसे बनाना है उसकी इंफॉर्मेशन है, आई थिंक ये सबको पता है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाना है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड ब्रॉडकास्ट लिस्ट सबको शायद पता ही है, बट फिर भी एक बार बता देती हूँ कि ग्रुप में हम सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, एवरीबडी कैन सी ईच अदर, बट इन ब्रॉडकास्ट ग्रुप नोबडी कैन सी ईच अदर, बट वन मैसेज सेंड will be received by 256 people. So एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में मैक्सिमम हम 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं, सेम एज इन द ग्रुप। सो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, एक जो फीचर बिजनेस व्हाट्सएप का है वो लेबल का है। आपको काफी सारे अलग अलग मैसेजेस आते हैं, ये सारे मैसेज हम अगर अलग अलग लेबल के हिसाब से रखें, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेनिंग लिंक का एक लेबल बनाया हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग लिंक्स आते हैं मुझे ढूंढने नहीं जाना है, ये लिंक्स ऑलरेडी मेरे लेबल में है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने व्हाट्सएप में जाऊं और उसके अंदर लेबल्स में जाऊं एंड ट्रेनिंग लिंक्स में जाऊं, तो मुझे यहाँ जितने भी लिंक मैंने स्टोर करके रखे हैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के, वो सारे ही लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो ऑन द लास्ट मोमेंट आई डोंट हैव टू सर्च, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सर्च करना, और इसलिए अगर हमने अलग अलग लेबल बना के रखे हैं, हम क्लाइंट वाइज लेबल बना के रख सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज हम लेबल बना के रख सकते हैं, इनवॉइस के हिसाब से हम लेबल बना के रख सकते हैं, अलग अलग टाइप के लेबल्स हम बना के रख सकते हैं, इंक्वायरी का लेबल बना के रख सकते हैं। सो लेबल को यूज कैसे करना है,
नाउ इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, ये एक लिंक है जो मुझे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मुझे इसको लेबल करना है। तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, एंड ऑन द टॉप जस्ट बिफोर दिस थ्री डॉट्स देयर इज अ लेबल का ऑप्शन। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो वहां पे आप जितने भी लेबल आपने बनाए हैं उसका लिस्ट दिखेगा। बिकॉज इट इज अ ट्रेनिंग लिंक, मैंने ट्रेनिंग लिंक को सिलेक्ट किया। अगर कुछ और होता तो यू कैन क्रिएट योर न्यू लेबल, आप यहाँ पे अपना नया लेबल भी बना सकते हैं। लेट्स से माय डिजाइन्स। सो मैंने मेरे डिजाइन का एक लेबल बना दिया, और मैंने उस एक पर्टिकुलर चैट को दोनों ही जगह पे रखा है एंड सेव कर दिया। सो नाउ जब भी मुझे लेबल को एक्सेस करना होगा तो आई गो टू दिस, तो मुझे मेरा डिजाइन यहाँ पे मिलेगा। कोई मुझे बोलेगा कि आप कैसे डिजाइन करते हो फ्लायर्स भेजो, तो मैं इस पर्टिकुलर लेबल में जाके उनको यहाँ से सेंड कर सकती हूँ सारे ही डिजाइन। सो दिस इज हेल्पिंग अस टू सर्च इट फास्टर लेबल वाइज। वेब व्हाट्सएप के बारे में सबको पता है। हम नॉर्मल अपने ब्राउजर में वेब वेब व्हाट्सएप ओपन करके यहाँ से अगर स्कैन करेंगे तो आप इजीली उसको ऑन कर पाओगे। इफ यू कैन सी दिस, यहाँ से मुझे स्कैन करना शुरू करना है, एंड व्हेन आई स्कैन इट इट विल बी अवेलेबल ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। I already my two devices are enabled. If I want to add one more, कहीं तीसरी जगह पे मुझे लॉग इन करना है, तो ये प्लस का साइन आप देखेंगे ऊपर, वो प्लस के साइन को टैप करना है, एंड देन यू हैव टू शेयर सॉरी स्क्रीन द बारकोड विच इज गिवन ऑन द स्क्रीन, उसको स्क्रीन कर लेना है, एंड ऑटोमेटिकली आपका थर्ड डिवाइस भी एनेबल हो जाएगा। बट इट इज एडवाइजेबल कि आप उसको रिमूव कर दीजिए वंस योर वर्क इज ओवर। अदरवाइज जब भी आपका फोन इंटरनेट पे होगा तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइस के वेब वेब व्हाट्सएप में वो एनेबल हो जाएगा, एंड पीपल कैन सी इफ दैट इज नॉट योर ओन पर्सनल कंप्यूटर। स्टार्ड मैसेज, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो स्टार करके रख सकते हैं। अगर वो मैसेज को हमें दोबारा देखना है तो सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्टार करे हुए मैसेज को देखना है मुझे। तो मेरे पास इतने मैसेजेस हैं जिसको मैंने स्टार करके रखा है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका मुझे फ्रीक्वेंटली यूज करना है, या तो ये मैसेजेस ऐसे हैं जिसका रेफरेंस मुझे कहीं और लेना है। सो आई हैव स्टार्ट दीज मैसेजेस, और वो मैंने स्टार करके रखा हुआ है। सो स्टार मैसेज का एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, तो वो हम कैसे स्टार कर सकते हैं। सो यू गो टू एनी मैसेज। नाउ दिस पर्टिकुलर मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे इसका रेफरेंस कहीं पे देना है या लेना है। सो उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, तीन डॉट्स में गए और वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा स्टार। सो आई हैव स्टार्ड इट। जैसे मैंने उसको स्टार कर लिया, एंड व्हेन आई गो टू स्टार्ट मैसेज आई विल बी इन अ पोजिशन टू सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। सो जितने भी निर्मल सर के मैसेजेस हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। तो सेकेंड जो मैंने अभी स्टार्ट किया, आई कैन सी दैट। सो दिस इज हैंडी। वंस अगेन इट इज इजी फॉर अस टू गो टू दैट पर्टिकुलर मैसेज। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट न्यू ग्रुप्स। न्यू ग्रुप में एक चीज आती है कि जब हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो हम 256 लोगों तक उसमें लोगों को ऐड कर सकते हैं। एंड वन थिंग दैट वेरी रिसेंटली पीपल हैव स्टार्टेड इज, ये हमारा ऑफिस का ग्रुप है, जहां पे जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो एक ग्रुप सेटिंग आता है। हमें काफी टाइम ये हमने देखा होगा अभी, एडमिन आप चेंज कर सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है edit group info, choose who can change the group subject, icons and description। काफी टाइम ये होता था कि पहले लोग अपने हिसाब से फोटो चेंज कर लेते थे, अपने हिसाब से ग्रुप का नाम बदल देते थे। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि ओनली एडमिन कैन डू दिस, so that there are no changes in the group name and group profile pic। एंड अनदर इज मैसेज कौन सेंड कर सकता है। इफ यू वांट टू मेक इट ओपन कि सभी मैसेज को का रिस्पॉन्स कर सके, तो ऑल पार्टिसिपेंट्स, बट ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले ऐसा आया था कि ओनली एडमिन कैन शेयर द मैसेज, तो आप यू कैन शिफ्ट इट फ्रॉम हियर।
ये जिसको भी ना पता हो उसके लिए है, बट काफी सारे लोगों को ये चीज पता होगी। सो जैसे ही मैंने इसको एडमिन ओनली कर लिया, एंड इफ आई गो बैक, तो मैं यहाँ पे देखूंगी कितने लोग एडमिन है, तो सिर्फ 2 लोग एडमिन है। सो नाउ ओनली दीज 2 people कैन चेंज द फोटोग्राफ ऑफ प्रोफाइल पिक एंड द सब्जेक्ट, मतलब नेम ऑफ द ग्रुप, एंड यू कैन सी यहाँ आपको नीचे दिखेगा यू हैव चेंज दिस ग्रुप सेटिंग्स, वहां पे एक नीचे मैसेज आ गया, एंड नोबडी फ्रॉम दिस ग्रुप apart from the admins can change anything, can write anything in this particular group. So I'm just going back and changing because ये हमारे ऑफिस का ग्रुप है, we don't need such things. So again we are back to this. When we are in the group के बारे में थोड़ा बात इसलिए करेंगे कि इसके थोड़े फीचर हैं। ग्रुप का मीडिया किस तरह से हमें देखना है। सो ऑल द मीडिया जितना ये ग्रुप में आया है, फोटोग्राफ ऑन वीडियो आई विल सी इन मीडिया। डॉक्यूमेंट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए वो दिखेंगे। तो अगर हमें किसी ने वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल या पीडीएफ भेजा है तो वो डॉक्यूमेंट में दिखेगा, एंड अगर किसी ने कोई लिंक शेयर की है तो हमें वो लिंक यहाँ पे मिलेगी। सो इफ यू वांट टू सर्च समथिंग वी शुड गो टू दिस मीडिया एंड सर्च। पूरा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ये हमें इस तरह से सर्च करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा मीडिया में जाके सर्च कर सकते हैं। नंबर 2, सर्च का एक ऑप्शन है, सिर्फ हमें टेक्स्ट को सर्च करना है, एंड मुझे देखना है कि कोई पर्टिकुलर मैसेज स्नेहा के नाम का है कि नहीं, और मैंने सर्च डाला तो इट विल शो मी ए मैसेज जहां पे स्नेहा लिखा है। इफ यू कैन सी द फर्स्ट मैसेज, खुशबू गुप्ता, हेलो स्नेहा मैम, हाउ आर यू। सो जहां जहां भी स्नेहा लिखा हुआ होगा वो हर जगह पे सर्च होगा। रोड्स एट माई एरिया आर ब्लॉक्ड, वहां पे भी स्नेहा एंड दिशा का नाम है, सो स्नेहा। सो दिस इज हाउ वी कैन सर्च। तो हमें कोई स्पेसिफिक वर्ड से कोई मैसेज सर्च करना है तो इट इज इजी टू सर्च। सो ग्रुप में और नॉर्मल चैट में भी ये सर्च का ऑप्शन एनेबल है। हम ग्रुप को लेबल भी कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जो बहुत स्पेसिफिक है, उसको हम हमारे क्लाइंट के, लाइक फॉर एग्जांपल द पर्सन, दिस इज अ क्लाइंट का ग्रुप, और हमें वो लेबल करना है तो हम कर सकते हैं। इफ वी गो टू मोर वी कैन, किसी ग्रुप में हमें ऐड कर दिया एंड दैट ग्रुप इज नॉट राइट, वी कैन रिपोर्ट कि ये, हम उस ग्रुप में से निकल जाएंगे और हम उसे रिपोर्ट करेंगे कि दिस इज नॉट द राइट ग्रुप, एंड दे विल टेक एक्शंस, व्हाट्सएप टीम विल टेक एक्शंस अगेंस्ट दिस ग्रुप। यू कैन एग्जिट एनी टाइम, यू कैन क्लियर चैट, यहां से अगर हम क्लियर चैट करेंगे तो सब चैट डिलीट हो जाएगी इंक्लूडिंग मीडिया। तो ये बहुत संभाल के करना है। एक्सपोर्ट चैट का जो मैंने ऑप्शन वहां पे बोला था वो यहाँ पे भी है। सो व्हेन आई डू एक्सपोर्ट, so without media it initialize it, and then sorry, मुझे वो मेल कर देना है। सो ऑटोमेटिकली आई हैव मेल्ड इट, यहां से मैंने उसको मेल कर दिया। सो ये पूरे ग्रुप का डेटा मेरे मेल पे आ गया, सारे ही चैट का डेटा। सो हम पूरे चैट को सेव करके मैंने मेरे ग्रुप पे भेज दिया है। एंड यू कैन ऐड शॉर्टकट। कोई पर्टिकुलर पर्सन है या कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिससे हमें ज्यादा बात करनी होती है, तो वी कैन ऐड दिस पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑन द स्क्रीन, उसका शॉर्टकट क्रिएट कर दिया, एंड ऑन द मेन स्क्रीन इफ यू सी एम्पल सैम्पल्स इज देयर, एंड जब भी मुझे मेरे कंपनी के ग्रुप में मैसेज करना है तो आई जस्ट हैव टू क्लिक फ्रॉम हियर एंड ऑटोमेटिकली आई विल बी डायरेक्टेड टू माई ग्रुप। So this was related with group. एक पिन का ऑप्शन है। नाउ पिन इज अप टू 3 कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स वी कैन पिन। सो जब हम पिन करते हैं तो हमें ऊपर 3 जो दिख रहे हैं वो मैंने पिन किए हुए हैं। सो टेक्नो लर्नर इज पिन, निर्मल पारेख इज पिन, एंड देयर इज वन मोर पर्सन जिसका नाम भी मैंने पिन किया है। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो मुझे हर वक्त देखने होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव पिन दिस पर्सन। अगर मैं इसको हटा दूं, यहां से अनपिन कर दूं,
तो वो वहां से हट जाएगा एंड आई विल गेट वन मोर, क्योंकि मैक्सिमम मैं 3 ही पिन कर सकती हूँ, तो मैंने किसी और को पिन कर दिया, तो ये 3 हमेशा ऊपर रहेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द चैट्स, चाहे कितने भी मैसेजेस आ जाए, बट ये 3 नंबर ऊपर ही रहेंगे. सो दिस इज पिन. देन वी हैव म्यूट का ऑप्शन. कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं उसमें से हम निकल नहीं सकते हैं, उसमें रहना बहुत जरूरी होता है, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन डू इज हम उसे म्यूट करते हैं. अगर हमारे लिए ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको म्यूट कर सकते हैं. और म्यूट करने के लिए लेबल है, लेबल के बाजू में पिन है, और पिन के बाजू में म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है. और कितने टाइम तक म्यूट करने हैं नोटिफिकेशंस? 8 आवर्स, 1 वीक और 1 ईयर. सो लेट्स से मुझे 1 ईयर के लिए करना है. सो नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन शो करवाना है, बट हमें नोटिफिकेशन पॉपअप नहीं आना चाहिए, तो हम उसको ओके कर देंगे. तो ये ग्रुप के मैसेजेस मुझे 1 साल तक पॉपअप नहीं होंगे. वो आएंगे, वो दिखेंगे भी, बट मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे. न्यू ब्रॉडकास्ट ग्रुप, जैसे हम नॉर्मल ग्रुप बनाते हैं उसी तरह से आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना देना है. जैसे ही आप लोगों को ऐड करेंगे उनको पता नहीं चलेगा कि दे आर इनटू योर ब्रॉडकास्ट ग्रुप. ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और आप 256 लोगों तक इसमें ऐड कर सकते हो. जैसे ही 8 रेसिपिएंट का मेरा एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन गया, ना वट एवर आई विल टाइप हियर एंड आई विल सेंड ए मैसेज, इट विल गो टू दीज 8 पीपल सेपरेटली, उनको इंडिविजुअली मिलेगा. सो दिस इज हाउ ए व्हाट्सएप ग्रुप इज क्रिएटेड. आई डोंट नीड इट, सो आई एम जस्ट डिलीटिंग इट. Can you show how to link Facebook in WhatsApp account? Okay. I'm just sharing my desktop ka screen, and this is my WhatsApp account, sorry, Facebook account, and the name of the page is Training Ample, Training at Ample. अगर आपने अपना आपका ये पेज बनाया है तो आप यहाँ पे सेटिंग्स दिखेगा आपको ऊपर on the top. You go to the settings. When you go to the settings, on this left side general page info, वहां पे नीचे Instagram and WhatsApp है. The moment you get into WhatsApp, इस तरह से एक पेज ओपन होगा, and here you have to add. Now the beauty is you can add any. आप नॉर्मल व्हाट्सएप भी ऐड कर सकते हो, आप व्हाट्सएप बिजनेस भी ऐड कर सकते हो. सो अगर आप बिजनेस यूज नहीं भी कर रहे हो तो नो वरीज. तो आई हैव एडेड माई अनदर नंबर जिसके ऊपर और कोई पेज लिंक नहीं है, तो मुझे वो मैसेज आएगा वहां पे, यहाँ पे एक कोड आएगा. आई हैव टू चेक दैट कोड एंड आई हैव टू ऐड दैट कोड. I have received that code on my WhatsApp number and I can confirm. जैसे ही मैंने कंफर्म किया, they will ask me कि क्या मुझे ये बटन रखना है. If yes, then I will add, and if no, then not now. So जैसे ही मैंने yes किया, it is showing here that it is connected, so I can disconnect if I want. And यहाँ से ये बटन को ऑन करना है एंड शो व्हाट्सएप नंबर ऑन पेज ऑल्सो. सो आई वांट कि मेरा नंबर दिखे. जब हम ये सिंक करते हैं तो नंबर दिखाना जरूरी है. सो ऑल इज डन. नाउ इफ आई गो टू द पेज, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया व्हाट्सएप का, और जैसे ये ऑप्शन आ गया, अगर कोई भी मेरे पेज पे जाएगा और वहां से मुझे मैसेज करना होगा किसी को, तो जस्ट इस तरह से होगा, टेस्ट होगा. और जैसे ही हम टेस्ट करने के लिए जाएंगे तो ये वेब व्हाट्सएप ओपन होगा. क्योंकि ये ऑलरेडी लिंक करा हुआ है, तो इट विल ओपन एंड आई विल बी इन अ पोजिशन टू सेंड ए मैसेज. तो ये ऑलरेडी मेरे नंबर पे गया बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड. ये मेरा ही नंबर था एंड आई कैन टाइप हियर एंड इट कैन गो देयर.
तो मुझे मेरे फोन पे दूसरे नंबर पे ये मैसेज मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन सेंड ए मैसेज फ्रॉम हियर. So we have seen accounts, we have seen notification, we have seen data, we have seen status. Okay, status में जाते हैं. ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन डिलीट योर स्टेटस. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर ना पता हो तो, कि हमने अगर कोई स्टेटस रखा है तो हम स्टेटस में जाके उसके स्टेटस सेटिंग्स में जाके माय स्टेटस में 4 चीज दिख रही हैं. उसमें से अगर मुझे किसी एक को डिलीट करना है तो आई कैन. वी कैन हैव टेक्स्ट, वी कैन हैव इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग. और ये स्टेटस का सेटिंग भी हमें पता है कि हमें सबको दिखाना है या किसी किसी को ही दिखाना है. सो अकॉर्डिंगली वी कैन चेक. देयर आर फ्यू अपडेट्स दैट हैज come. The WhatsApp business app is available today and free to download from App Store in Brazil, Germany, Indonesia, India, Mexico, UK, US. And the rest of the countries, they will also in coming weeks they'll get it. So ऐसा हो सकता है कि दूसरे कोई कंट्रीज में ये बिजनेस व्हाट्सएप अभी ना हो, बट दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. सो हो जाएगा. ग्रुप वीडियो एंड ग्रुप वॉइस कॉल में एक अपडेट जो आया है वो ये है कि पहले हम सिर्फ 4 लोगों के साथ एट अ टाइम बात कर सकते थे. राइट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 8 पार्टिसिपेंट्स. बट द ओनली कंडीशन इज कि सबके पास अपडेटेड वर्जन होना चाहिए एप्लीकेशन का. If the application is updated, then 8 participant can call on one single call. आप एक वीडियो कॉल में 8 लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो. अभी अभी आपने ये देखा होगा कि आपके चैट के अंदर डबल टिक वाला एक मैसेज आता होगा. आई विल शो यू माय स्क्रीन वंस अगेन. देयर इज अ मैसेज हियर. ये एक ऐसा मैसेज है जो बहुत सारी बार फॉरवर्ड हुआ है. एंड ऑन द स्क्रीन इफ यू सी, फॉरवर्डेड लिखा हुआ है और वहां पे डबल कीज हैं, डबल एरोज हैं. Now means this message cannot be forwarded to more than one person at a time. So if हम जनरली 5 लोगों को एक मैसेज एट अ टाइम फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पे आई कैन नॉट. So automatically the message will come. This message with double arrow key have been forwarded many times and can only be shared up to one chat at a time. Now, this is very important. So मैं सिर्फ और सिर्फ उसे एक पर्सन को फॉरवर्ड कर सकती हूँ. एंड जब भी फॉरवर्ड करेंगे हम, तो ये लेबल ऊपर दिखेगा आपको कि ये मैसेज फॉरवर्डेड है. सो कभी कभी ओरिजिनल मैसेज एंड फॉरवर्डेड मैसेज में डिफरेंशिएट करने के लिए ये एक हेल्प करता है कि मैसेज फॉरवर्डेड है या मैसेज ओरिजिनल है. सो इफ यू सी दिस मैसेज, गूगल फॉर्म वाला मैसेज, वहां पे ऊपर कोई लेबल नहीं है, मीन्स इट इज अ फ्रेश मैसेज. बट इफ यू सी इन दिस लाफ्टर टॉम एंड जेरी वाला पिक्चर, ऊपर आपको फॉरवर्ड मिलेगा और वहां पे सिर्फ एक एरो है, मतलब यू कैन सेंड इट टू 5 पीपल एट अ टाइम. सो दिस इज समथिंग विच इज अपडेट. ये कोरोना का एक इम्पैक्ट है और उसकी वजह से इन्होंने ये किया हुआ है कि बहुत ज्यादा जो ग्रुप में फॉरवर्ड हुआ है उसको वन टाइम फॉरवर्ड कर दिया है. डबल एरो, सिंगल एरो का मैंने आपको बताया. लेबल फॉरवर्डेड मैसेज, जो मैसेज थे वो फॉरवर्ड थे, उसके ऊपर फॉरवर्डेड लिखा हुआ आता था. डार्क मोड इज अवेलेबल एंड ग्रुप सेटिंग्स हमने देखे हैं. Now just to summarize, सेफ्टी कितनी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस व्हाट्सएप एंड हमारे पर्सनल मैसेजेस की बात है. तो एक तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन अगर ऑन है तो आप श्योर हो एंड सेफ हो. कंट्रोल योर प्राइवेसी सेटिंग, आप प्राइवेसी सेटिंग में जाके कुछ चीजों को सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट तक लिमिट कर सकते हो. ब्लॉक अनवांटेड यूजर्स, रिक्वेस्ट ऑन एंड ऑफ अकाउंट इंफॉर्मेशन, इफ रिक्वायर्ड क्लीन द मैसेजेस का चैट, जो भी क्लियर कर दीजिए चैट के जो मैसेजेस हैं. टर्न ऑन और ऑफ एज पर योर रिक्वायरमेंट द रीड रिसीट. डिलीट और रिपोर्ट द स्पैम, कोई ग्रुप को डिलीट कर दीजिए, कोई पर्सन को डिलीट कर दीजिए, उसे स्पैम रिपोर्ट कर दीजिए बिकॉज दे विल टेक एक्शन.
Leave the group immediately, enable two-step verification, fingerprint lock use करना शुरू कीजिए. And if you have Android, you can have touch ID and face ID. Android में ये option भी available है, so you can be sure that it is 100% safe. This is to say, one more thing that I always want to share is social media is for open people, open public, and there is nothing private on that. So always ensure that you don't share any passwords, user IDs, pin through even WhatsApp also, however safe it is. But for security purpose, certain things should not be shared. This is for our personal safety. That's it, friend. This was all that I wanted to share with you.